ابرار جاتا ہے کئی آفیسر کے پاس ڈیلیگیشن لے کر، تو یہ بھی غلط ہے. اگر یہ خاندانی راج ہے وہ بھی خاندانی راج ہے. ہم اس خاندانی راج کے خلاف نکلے تھے، اور جس دن ہمیں لگے گا سجاد غنی لون کو خاندانی راج وہاں پہ بھی لگا تبھی اپنی چھوڑ. وہ آپ کو نہیں لگ رہا، آپ تو زیادہ کور کر رہے ہیں. میں تو آپ کو بول رہا ہمیں بالکل لگ رہا ہے، ڈنک کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے. باقیوں کو کیا لگ رہا ہوگا وہ ہوں آپ کو بھی لگ رہا ہے. جی ان کے ساتھ میں سہمت ہوں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پردے کے پیچھے ہوتی ہے، جو میں ابھی کے پیچھے کیا ہوتا ہے، کس بات کا پردہ ہے؟ جی میں ابھی اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. چل نہیں سکے یار گاؤ نچا وہ باتیں نہیں ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم خاندانی راج ختم کرنے والے ہیں. ان کا بھائی، ان کے بیٹے، دیکھو ان کے بیٹوں کو میں اتنا بلیم نہیں کروں گا کیونکہ ان کی مجبوری ہے. ان کا فادر کہیں پہ ہے یا وہاں پہ سیف ہے، وہ پبلک جانتی ہے. انجینئر صاحب ایم پی بن گئے تو ان کے پاس پاورز آئے، بٹ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ تک، ابھی تک کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو لوگوں کے فیور میں گئی ہو. انجینئر صاحب یہ کریں گے، کشمیریوں کی بات کریں گے، پیلوی سائڈ جیسے بہت سارے ان کے نعرے تھے. تو جب یہ آگے آنے لگے نا تو مجھے یہ ایک مکھوٹا لگا کہ لوگوں کو جھوٹ لگائی، لوگوں کو بہکانے کی کوشش. کل کو ہمارے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے جو ہے یہ جو چاہے سرکار ہو چاہے کوئی بھی سیاست دان ہو پرانا، یہ تو بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہے. جو سانپ کا ہوتا ہے آستین کے ساتھ. سانپ کون ہے، آستین کون ہے؟ یہ خود سانپ بھی ہے اور آستین ہم لوگ ہیں. آستین ہم. جی یہ کب ڈسیں گے اور کب یہ انہوں نے ڈسا ہے، یہ آپ لوگ نہ ہم لوگ اندازہ کرتے ہیں نہ آپ لوگ اندازہ کرتے ہیں. سارے لوگ ہیں کیا؟ ہاں بالکل سارے لوگ ہیں. جہاں آج تک تو ہم نے سبوں کو دیکھا ہے. ہم نے سیاست میں کیوں ہیں؟ ہم سیاست میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ چینج آنا چاہیے، بدلاؤ آنا چاہیے، ہمیں شاید غلط فیڈ کیا گیا تھا کہ سجاد صاحب جو ہیں بی جے پی ہے، اور کس طرح سے بدنام کیا گیا ان کو اسمبلی الیکشنز میں بھی یا پارلیمنٹ میں بھی. جیل سے باہر آئے تھے اور باہر انہوں نے جو غلط زبان استعمال کی تھی ایک لیڈی کے بارے میں، چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو یا عمر اللہ کے بارے میں، نہیں کرنی چاہیے تھی. کہ ہماری بھی ماں بہن ہیں، وہ بھی کسی کی ماں یا بہن ہے. آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ ہم نے کی تھی لیکن کسی نے سنی نہیں. اور اس وقت ہم موجود ہیں پیپلز کانفرنس کے آفس میں، جہاں پہ آج پیپلز کانفرنس میں قریباً 5 سے 6 لوگوں نے جوائن کیا جو اے آئی پی کے ساتھ کافی ٹائم سے جڑے ہوئے تھے، انجینئر رشید کی پارٹی کے ساتھ. آج انہوں نے انجینئر رشید کی پارٹی کو خیر آباد کیا اور انہوں نے پیپلز کانفرنس کو جوائن کیا. ایسی کیا وجہ رہی انہوں نے انجینئر رشید کا دامن چھوڑ کے جو ہے سجاد غنی لون کا دامن تھام لیا؟ بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا. آج آپ نے سجاد غنی لون کی پارٹی پیپلز کانفرنس جوائن کی، اس سے پہلے آپ وابستہ رہے اے آئی پی کے ساتھ، انجینئر رشید کی پارٹی کے ساتھ. ایسی کیا وجہ ہوئی سالوں کے بعد آپ نے اے آئی پی چھوڑ کے سجاد غنی لون پیپلز کانفرنس کا دامن تھاما؟ دیکھیں، جب کوئی بھی یوتھ ہمارے جیسا یووا جب آج کل کی سیاست میں آتا ہے تو وہ کسی لالچ کے لیے نہیں آتا ہے. وہ آتا ہے کہ عام کشمیری کی جو ہے بات کون کرتا ہے، ہیلپ کون کرتا ہے. جب ہم نے سجاد صاحب کو دیکھا، چاہے وہ اسمبلی میں ہو 2 سیشن، چاہے وہ سری نگر میں ہوئی ہو یا جموں میں ہو، یا ان کے بعد جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو بھی کام ہوتے تھے، اور ان کی لیڈرشپ سے انسپائر ہو کے ہم نے جوائن کیا. ہم نے سوچا کہ اگر کشمیری اور پرو کشمیری کوئی وائس بن سکتا ہے وہ سجاد غنی لون صاحب ہے. کیونکہ لگا وہ سب سچ نہیں ہے، اس میں تو سب نہیں، کچھ بھی سچ نہیں ہے. آپ تو سچ بول رہے ہیں سب، میں تو بول رہا ہوں کہ کچھ بھی سچ نہیں ہے. کیونکہ جو ہمیں لگا، اگر ایک پارٹی سے فار ایگزامپل اب نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے، اگر یہ وہی نیشنل کانفرنس ہے جس میں فاروق صاحب نے سیف الدین سوز کو نکالا تھا پارٹی سے کیونکہ انہوں نے بی جے پی سے الحاق کرنے سے منع کیا تھا، یا اگر عمر صاحب جو ہے سجاد صاحب کو بی جے پی کہیں گے تو اس کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ 2 بار منسٹر رہے ہیں ان کے سرکار میں. اب اگر محبوبہ جی کہتی ہے تو وہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نہ ہم اپنے زبان سے بولنا چاہتے ہیں، کیونکہ کشمیری جتنا انہوں نے کشمیریوں کو پاگل سمجھا ہے اتنا کشمیری پاگل نہیں ہے. رشید تو کہتے تھے میں سچا ہوں، سچی سیاست کرتا ہوں، ان کا دامن کیوں تھا چھوڑ دیا آپ نے؟ دیکھیں، کہنے اور بولنے میں بہت فرق ہوتا ہے. کیا فرق لگا آپ کو؟ دیکھیں، کہنے میں بھی بول سکتا ہوں کہ میں کوئی مولانا ہوں، اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ جب پھر جب انجینئر رشید جو کہتے تھے وہ سچ نہیں ہے. دیکھیں، انجینئر رشید جانے میں اس کا یہاں پہ سپوکس پرسن بن تو آپ نے تو بہت ٹائم دیا نا انجینئر رشید کے ساتھ. مجھے فرق لگا، مجھے اگر لیڈرشپ صحیح لگی تو مجھے سجاد غنی لون صاحب کی لگی. کیونکہ یہ سب پارٹیز جو ہیں، میں ایک شعر ان سبوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یہی تعلق ہے ان سب کا کشمیریوں کے ساتھ. تو ہم ہی لوگوں کو کھڑا ہونا ہے. اگر ہم اللہ بھروسے انہی پہ رکھیں گے تو پھر تو کل کو ہمارے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ ان سے جو ہے یہ جو چاہے سرکار ہو چاہے کوئی بھی سیاست دان ہو پرانا، یہ تو بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہے. اگر یووا چاہتا ہے چینج، وہ بولتا ہے کہ یوتھ جو ہوتے سیاست میں آنا چاہیے، تو پھر تو خود پہل کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں نا لوگ جب اپنے انجینئر رشید کو دھوکہ دے دیا، کل اب سجاد غنی لون کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے نہ کسی کو دھوکہ دیا ہے. جب ہم نکلے تھے، ہم ایک کاز کے لیے نکلے تھے کہ کشمیریوں کی ہیلپ ہو جائے گی.
लेकिन मुझे बताएं बेचारा खुद वो जेल में है तो कश्मीरी की कहाँ से हेल्प हो जाएगी? हेल्प हो जाए कश्मीरियों की, खुद वो जेल में, आपको ये समझ आ गया कि एआईपी सही नहीं है, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस सही? 12 साल जी एआईपी के साथ मुंसलिक था, लेकिन आज मुझे लगा कि सजाद गनी लोन की सियासत जो है वो बिल्कुल 12 साल के बाद आपको समझ आया ये? जी आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एआईपी के कुछ कोर वैल्यूज़ थे, कुछ कोर आइडियोलॉजी थी। You have taken to 12 years, change the party. यस क्योंकि मैं जो भी उसकी आइडियोलॉजी थी मैं उसके साथ था, लेकिन मुझे लगा इन लास्ट इलेक्शन, इन असेंबली इलेक्शन, दैट एआईपी कहीं ना कहीं डिरेल हो रही है अपने कोर वैल्यूज से, अपने आइडियोलॉजी से। दैट इज़ द रीज़न आई गेव माय रेजिग्नेशन ऑन। आइडियोलॉजी क्या थी एआईपी की, उसके बाद आप मजबूर हो गए, आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी में थोड़ा फर्क आया? जी देखिए, कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे जिससे पार्टी की शुरुआत हो जाती है, और एआईपी की अगर हम देखेंगे हिस्ट्री, लाइक इंजीनियर रशीद हैज़ बीन इन असेंबली, उसने कैसे लोगों की तर्जुमानी की, तब तक तो सब सही था, बट पोस्ट 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन ईच एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, और मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर मुझ में है कुछ कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, तो मुझे लग रहा है एज ऑफ नाउ सजाद गनी लोन ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू हु इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, सेंटिमेंट्स ऑफ द यूथ, और मुझे लग रहा है कि इनके साथ अगर मैं चलूं तो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाए। साहब, में आपको वो बात लगती है कि ये लोगों की बात, ये नुमाइंदगी अच्छी तरह कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट अच्छी तरह कर सकते हैं? ये मैं ही नहीं बल्कि यहाँ का वैली का बच्चा अभी जानता है, बल्कि हर कोई नौजवान ये जानता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लोगों की तर्जुमानी की लास्ट जो असेंबली सेशन था, उससे ये बिल्कुल साफ़ हो गया है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर का अभी कोई फ्यूचर है तो दैट इज़ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अगर मैं आपसे, आप दोनों से पहले पूछ लूँ कि सजाद गनी लोन की किस बात ने आपको मुतासिर किया जिससे आप मुतमीन हो गए कि आपको सजाद गनी लोन साहब की पार्टी ज्वाइन करनी है? एक वर्ड। देखिए, एक वर्ड नहीं, मैं पूरा एक इस पे ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 2-3 लाइनें बोलूँगा। जैसे हम जैसे हम सब लोग बात कर रहे थे 370 की, 35A की, तो असेंबली में सबसे पहले और बुलंद आवाज़ में किसने बात की? सजाद गनी लोन साहब ने। रिजर्वेशन के लिए बात कौन करता है? सजाद गनी लोन साहब। ये जो डेली वेजर्स की बात किसने की? सजाद गनी लोन साहब ने। आप मुझे या स्टेटहुड की बात कौन करता है? सजाद गनी लोन साहब। इनके बगैर को ये जो है यहाँ कुछ और बोलते हैं, लोगों के सामने कुछ और बोलते हैं। आपको भी वही लगा? जी मैं समझता हूँ कि सजाद गनी लोन जो है वो एक एनसाइक्लोपीडिया है ऑफ नॉलेज, तो मुझे लग रहा है कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू फ्रेम पॉलिसीज़, एंड जिसकी वजह से कश्मीर में जो है बहुत फ़र्क पड़ सकता है अगर वो पावर में कभी आते हैं। तो अभी हम उनके साथ जुड़ रहे हैं सिर्फ उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सो दैट जो हमें लगा है ये चीज़ हम सारे कश्मीर को बता देना चाहते हैं कि ही इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, सो दैट कल को जो कश्मीरी चाहते हैं कि आज हम बहुत पीछे हो गए हैं, चाहे डेवलपमेंट फ्रंट की बात करें या बाकी चीज़ों की, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हर एक सेक्टर जो है वो पीछे है, उसके लिए एक अच्छे पॉलिसी मेकर की ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है कि सजाद गनी लोन है। तो जैसे इंजीनियर रशीद के 2 बेटों ने कैंपेनिंग की, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें, असेंबली इलेक्शन की बात करें, उन्होंने कहा मुझे खानदान से किसी को नहीं उतारना, लोग जाएंगे, उनके भाई ने दूसरे जीता। आप इस पे हंस रहे हैं तो आपकी स्माइल बहुत कुछ बता रही है। मुझे लगता है जैसे आपने पहले पूछा था कि क्यों आप निकल रहे हैं पार्टी से, रीज़न यही था? आपके सवाल में ही जवाब है। रीज़न यही था? तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ऐसे बहुत सारी रीज़न है। आपको भी ये रीज़न लगता है? जी ये जो आपने सवाल, मुझे लग रहा है इस सवाल का जवाब जो है उनके बेटे और उसका भाई ही दे सकता है। आपको क्या लगा? व्हाट यू फील? जी जो मैंने अभी सजाद गनी लोन साहब को ज्वाइन किया, ये दिस इज़ द बेस्ट आंसर। आपको लगता है खानदानी राज वहाँ पे भी इंजीनियर रशीद की बात? जनाब, खानदानी राज कहाँ नहीं है, आप मुझे बताएं। अगर हम मैं आपको वहाँ की मैं बात करूँ, आप वहाँ से छोड़ के? मैं कैटेगोरिक में डरता नहीं हूँ, ना मैं किसी से डरूंगा, क्योंकि बोलिए। हाँ बिल्कुल, है तो सियासत सच्चे दिल से बात करेंगे। जी। अगर उमर अब्दुल्ला के बेटे जब बैठते हैं कैबिनेट मीटिंग में, ये गलत है। जब अबरार जाता है कई ऑफिसर के पास डेलीगेशन लेकर, तो ये भी गलत है। अगर ये खानदानी राज है, वो भी खानदानी राज है। हम उस खानदानी राज के खिलाफ निकले थे, और जिस दिन हमें लगेगा सजाद गनी लोन आपको खानदानी राज वहाँ पे भी लगा तभी आपने छोड़? वो आपको नहीं लग रहा, आप तो ज्यादा कवर कर रहे हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल लग रहा है, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है। बाकियों को क्या लग रहा होगा, वो आपको भी लग रहा है? जी इनके साथ मैं सहमत हूँ, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे होती है, जो मैं अभी के पीछे क्या होता है, किस बात का पर्दा है? जी मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जो है मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ, बल्कि ये जितने भी नौजवान हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ आके हमारा
आपको क्या लगता है पर्दे के पीछे क्या है? इन्होंने कहा पर्दे के पीछे अबरार है, खानदानी राज है, उस सियासत वो चीजों से हम खुश नहीं, हम खानदानी राज नहीं चाहते। आप भी इसमें मुत्तफिक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मैं अपनी बात कहूँगा कि पॉलिटिक्स के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया एट दैट टाइम हमसे कहा गया कि जब ये सामने आने लगे ना एक एक पर्दा हटता गया। फॉर एग्जांपल इन्होंने पेल्बिसाइड बोला उस वक्त, इस वक्त है कहीं पे। जब इंजीनियर साहब आए उन्होंने इसके बारे में कोई बात की। खानदानी राज की मैं बात बताऊंगा, इन्होंने बोला कि हम खानदानी राज ख़त्म करने वाले हैं। उनका भाई, उनके बेटे, देखो उनके बेटों को मैं उतना ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनका फादर कहीं पे है या वहाँ पे सेफ है वो पब्लिक जानती है। मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन वजह से हम उनसे दूर हुए। तो मुझे लगा कि यही एक रीजन है कि हम सुनिए पार्टी में एक बात, आपने वो पार्टी में बात रखी, आपकी बात को सुना गया, अपनी चीजें जो सामने रखी। पहले मैं इस चीज़ का जवाब देने नहीं, इसमें आप मुझे बताइए पार्टी है कहाँ? आप बोल रहे पार्टी में बात रही, पार्टी है कहाँ? आप ही पार्टी है कहाँ? देखिए ये बात सही है इनकी, पार्टी है कहाँ, एक नज़म होता है। देखिए हम यहाँ पे आए इसी भरोसे उनके साथ भी जुड़े हुए थे कि लोगों की खिदमत कर सके, लोगों की मदद कर सके, कि अगर कहीं पे किसी की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सके। मुझे लगा कि जितना टाइम होता गया, आज इलेक्शन के बाद आज अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया, तो मुझे लगा कि लोगों के पास कोई पहुंच ही नहीं रहा है उनमें से। और हमने ये लोगों को इकट्ठा किया था, उनसे ये कहा था कि हम आपकी हेल्प करेंगे किसी लेवल पे। किसी का राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं पब्लिक के, तो उनको सॉल्व करने की हमने कसम खाई थी एट दैट टाइम। बट मुझे लगा कि उस प्लेटफॉर्म पे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है और उनके जो मुखौटे है वो उतरते गए, तो हम मजबूरी सबब आपने भी वहां पे दे दिए इंजीनियर रशीद की पार्टी। देखिए मैं अपनी बात बताऊंगा, मैंने 3 साल उनके साथ दिए। 3 साल? हाँ, 3 साल लगी समझने में ये सारी चीजें। देखिए जब इंसान के पास पावर आती है ना या कोई जिम्मेदारी आती है, तभी आपको पता लगता है कि वो बंदा किस हद तक सही है। देखिए मैं बताऊंगा, जब हम नॉर्मली किसी मकसद के लिए चल रहे थे उस टाइम मुझे कुछ बात पता चलती कि लाइक ये सही कर रहे हैं कि गलत, बट जब उनके पास पावर आया वो कुछ चीजें एग्जीक्यूट करने लगे, एट दैट टाइम हमें पता चला कि कैंपेनिंग चली, जैसे कैंपेनिंग में नारे लगे, जैसे कैंपेनिंग में स्लोगन्स लगे। इंजीनियर रशीद साहब ने खुद भी कई टाइम तक 20 के 21 दिन कैंपेनिंग खुद भी की, अबरार असरार ने भी कैंपेनिंग की। तो जो उसमें वादे किए गए, जो बातें उसमें की गई, वो सारी सच्ची थी कि उसमें भी सियासत थी? आप मुझे पहले बताएंगे कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के जमीन पे ला देता हूँ, बट ये तभी पता चलता है जब ये एग्जीक्यूट करने की बारी आती है। जब उनके पास पावर आया एट दैट टाइम, हम एक ट्रैक की तरफ जा रहे थे, तो जब ये ट्रैक एग्जीक्यूट हुआ यानी इंजीनियर साहब एमपी बन गए, तो उनके पास पावर्स आए। बट मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट तक, आज तक, अभी तक कोई ऐसी चीज हुई है जो लोगों के फेवर में गई हो। दैट्स व्हाई वी आर मींस हियर, सजाद लोन साहब के साथ है हम, और हम चाहते हैं कि सजाद लोन साहब भी उसी स्ट्रेटजी पे चले जिस पे हमें लगता है वहां पे नुमाइंदगी हो सकती है सजाद गनी लोन साहब के। आज अपने दामन थामा, सजाद गनी लोन वैसे लीडर है जो लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, जो अपने वादों पे खरा उतर सकते हैं। जैसे मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ताहिर साहब ने और मुदस्सिर साहब ने बोला कि वो एक पावर बैंक है, ये नॉलेज बैंक है, सॉरी नॉलेज बैंक है, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है। मुझे भी लगता है कि जैसी उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी सोच है, उस हिसाब से हम आगे चल सकते हैं। यार हमें सीधा क्लियरली कैटेगोरिकली एक चीज़ सोचने देखे। मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ इसलिए कि कल को वो नौकरी मिले। मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस वक्त। अगर बस स्कूल फीस अगर मैं फीस दे रहा हूँ स्कूल की, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बच्चे पर, कल को इसका अच्छा फ्यूचर हो। मगर मुझे लगता है कि वो फ्यूचर इस वक्त तबाह होने की कगार पे। फ्यूचर आपको इंजीनियर रशीद की पार्टी में नहीं लगा? वो फ्यूचर मुझे उनकी स्ट्रेटजी में नहीं लगा, उनकी सोच में नहीं लगा। वो फ्यूचर मुझे सजाद साहब की सोच में लगा। दैट्स व्हाई आई एम विद सजाद साहब। आपको भी नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। और वो तभी लगा था जब वो बोलेंगे किसको, या आप देखें जो घर में बातें होती है किचन तक ही रहती हैं। जब कोई आगे वाला सुनने का सुबह फिर फैलाता है, ऐसा नहीं हमने नहीं किया, हमने बिल्कुल किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे जो भी गलत कहे। आप भी इसी बात पे? वन लाइन, सजाद गनी लोन इज द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो एआईपी को छोड़ के इन्होंने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। इनका ये कहना है कि किसी ने 4 साल दिए, किसी ने 13 साल दिए, कि किसी ने 3 साल दिए इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ। मगर आज ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, वहाँ पे हमें पॉलिसी डिफरेंस लगे। और एक वाहिद लीडर है सजाद गनी लोन, जिसकी क़यादत में हम आए, जो हमें लगता है लोगों की बात, हमारी बात और लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। और सजाद गनी लोन एक पावरफुल लीडर है, इनका कहना है। और सजाद गनी लोन डंके की चोट पे की बात कर सकता है। कैमरामैन शोएब नबी के साथ उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।